काले तु पुरुषः आगते गतसाध्वसः छिन्द्यादसङ्गशस्त्रेण स्पृहां देहेनुयेचतम् अन्तकाले तु पुरुषः आगते गतसाध्वसः छिन्द्यादसङ्गशस्त्रेण स्पृहां देहेनुयेचतम् अन्तकाले तु पुरुषः आगते गतसाध्वसः छिन्द्यादसङ्गशस्त्रेण स्पृहां देहेनुयेचतम् अन्तकाले तु पुरुषः आगते गतसाध्वसः छिन्द्यादसङ्गशस्त्रेण स्पृहां देहेनुयेचतम्। माता जी से अंतकाले तु पुरुषः आगते गतसाध्वसः छिन्द्यात् असङ्गशस्त्रेण स्पृहां देहेनुयेचतम् अन्तकाले तु पुरुषः आगते गतसाध्वसः छिन्द्यादसङ्गशस्त्रेण स्पृहां देहेनुयेचतम् अन्तकाले तु पुरुषः आगते गतसाध्वसः छिन्द्यादसङ्गशस्त्रेण स्पृहां देहेनुयेचतम्। Here Shukdev Goswami is telling Parikshit Maharaj the fact of the life, and Antakale means, Antakal ke samay, at the time of death. The final moment is a special moment in everyone's life. हमारे जीवन में ना बहुत सारे क्षण होते हैं जिनको हम कहते हैं कि those are the important moments of our life. Is when a child is born, that's also the special moment in the child's life, right? फिर उसके बाद में बहुत सारे संस्कार होते हैं बच्चों के, वो भी स्पेशल मोमेंट्स होते हैं. बर्थडे होता है, वो भी स्पेशल मोमेंट्स होते हैं. मैरिज होती है, स्पेशल मोमेंट. बच्चों के बच्चे होते हैं, सब दीज आर ऑल स्पेशल मोमेंट्स, राइट? एंड वी ऑल सेलिब्रेट दीज स्पेशल मोमेंट्स. सो सिमिलरली द डेथ इज ऑल्सो a special moment in everyone's life, which we do not realize, but that is a fact, right? हम कई बार कहते हैं ना, as sure as death, means other special moments may or may not happen in our life. Birth is sure, right? Birth तो होगा ही जरूर. And after birth you may not celebrate a birthday, it doesn't matter, right? You may not get married, possible, right? You may get married but you don't have the son or daughter, don't have the child, that's also possible, right? But it's not possible that you will not have death. Anybody who is sitting here or outside or any part of the world, he is sure to meet with the death, right? It is certain. Nobody can. Dhruva, Krishna कहते हैं ना भगवद गीता में, जाए तो ही ध्रुव, जाते से ध्रुव मृत्यु में. जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है. But the problem is that we don't think about this special occasion which everyone has to face, right? We prepare ourselves throughout the life for so many things. हम पूरा जीवन बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करने में लगा देते हैं. Even for the small things we prepare, right? We have to go to the office, we prepare. Suppose if I know Sunday I have to go to the office, then from Saturday itself I start preparing. If not Saturday, at least Monday, Sunday morning I will start preparing, right?
Preparation is required. When you start the car, even that time you have to prepare. People do so many other preparation. Even for retirement, there is a preparation. So for everything, we prepare ourselves. And we spend so much energy. Prabhupada ji ne purport likha hai. If you see the purport, the sense of the purport, Prabhupada is telling us that we are directing our energy on so many things which are all temporary. Nothing of those things will help us when we leave our body. That's the whole sense of the Prabhupada purport in the beginning, if you see. It's not bad that we spend our energy in maintaining ourselves. अपने भगवान हमको जीवन दिया है तो उसको जीवन चलाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा ना. We can't go to the forest and just take the chanting beads, right? और वहाँ पे जप करना शुरू कर दें तो वो तो नहीं हो सकता वो है ना. And we should not do also. हमको ये अपनी जिम्मेवारी में डर से हम लोग ये कि because to meet the family responsibilities is difficult than going to the forest and just go and chant. कहीं पे भी बाहर जाके बैठो ना तो किसी जंगल में जाके बैठ जाओ, गाँव में जाके बैठ जाओ, रोज सुबह से शाम पे जप करो है ना, खाने को तो मिल ही जाएगा है ना, राइट. और कुछ समय लोग देखेंगे कि भाई जप कर रहा है सुबह से शाम तक है ना, 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो गया, राइट, तो रहने को भी जगह मिल जाएगी कुछ, राइट, पैसे भी कुछ देख के चले जाएंगे, राइट. तो वी कैन मेंटेन आवर बॉडी, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम है ना, राइट. बट कई बारी पीपल दे टेक दैट रूट just to avoid the family responsibilities. I have got the wife, I have got the children, I cannot maintain them, I have got this problem, this problem. चलो ठीक है, सब कुछ छोड़ के हम जाके भगवान के नाम को जप करते हैं. So no, that is not recommended. अर्जुना भी यही करना चाहते थे. कृष्णा से दोनों, you don't have to go in back, better you fight. अर्जुना तो साधु बनने को तैयार थे, वो बना बेचारा. कृष्णा ने रोक दिया हमको कि नहीं, तुम्हें साधु नहीं बनने के लिए, because your spirit, fighting will make you fight. Even if you go and begging, if you go for the begging. So it's easy to go in a solitary place and start chanting. Since we have assumed this Grahastha life, we're all Grahastha here, right? Everybody's married. So we have got so many responsibilities to fulfill. But while we are fulfilling those responsibilities, we should not forget that at some point of time, we have to face a moment in our life which we cannot avoid. And when that moment will come, nobody knows him. वो किसी को नहीं मालूम है. हमारे ऑफिस जाने का समय तो मालूम होता है हमको, है ना, आने का भी समय मालूम होता है. सो बट द ड्यूरेशन ऑफ अ लाइफ वी डू नॉट नो. प्रभुपाद जी एक परपोर्ट में बोलते हैं कि द होल भागवतम इज सेंटर्ड अबाउट वन टॉपिक. एंड पूरे भागवतम, आपने भागवतम नाम सुना, आप लोग भागवतम में आते हैं क्लास में, 18,000 श्लोक है, इतनी सारी कहानी है उसके अंदर. बट व्हाट इज द एम ऑफ द होल भागवतम? द एम ऑफ होल भागवतम is to prepare Parikshit Maharaj to meet with the final moment. And through Parikshit Maharaj, Bhagavatam is telling us how to meet the final moment. The Shukdev Goswami starts speaking from the second canto. First canto में नहीं. The Srimad Bhagavatam is conversation between, first canto में देखें तो हम लोग it's a conversation between Sutta Goswami and Shaunak Rishi. Then second canto, it is between Shukdev Goswami and Parikshit Maharaj. Third canto, it is between Maitreya Muni and Vidur Maharaj. Then in fourth canto again, it starts with the Shukdev Goswami and Parikshit Maharaj. When in between, whenever Shukdev Goswami has to give the answer, he will refer what has been spoken by other devotees, right? He will simply quote them as it is. तो श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटोर में बहुत सारे एपिसोड आते हैं, लेकिन उसके बाद में लास्ट चैप्टर के अंदर है ना, और बिफोर द लास्ट चैप्टर ऑफ द फर्स्ट कैंटोर, 18 चैप्टर के अंदर, द पास्ट टाइम वेयर परीक्षित महाराज जंगल में जाते हैं, वहाँ पर, राइट, he is very much thirsty and he was looking for a water. Then he saw one sage Shringi Rishi, and Shringi Rishi doesn't welcome him, and then he is so much angry that he will put a snake and put around the neck of the Shamik Rishi. So Shamik Rishi गले में वो मरा हुआ सांप डाल देते हैं, और फिर उनके बेटे को Shringi Rishi को मालूम पड़ता है ना, तो वो the son gets very angry and he curses him also. curses परीक्षित महाराज को वो श्राप भी दे देते हैं. और परीक्षित महाराज इधर उनको नहीं मालूम कि पीछे क्या हो रहा है, तो गुस्से में छोड़ के चले गए शमिक ऋषि को, है ना, और रास्ते में जा रहे हैं, जाते थे सोचते हुए हमको पश्चाताप हो रहा है अभी, है ना, कि जो मैंने किया वो अच्छा नहीं किया है. और पश्चाताप करते करते सोच रहे हैं कि मैंने जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो भगवान ने बोला है, उसके विरुद्ध कुछ काम किया है, तो अब जरूरी मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है अभी, है ना. और जो फर्स्ट कैंटोर का 19 चैप्टर है, उसके पहले 3 श्लोक है ना, दोज आर वेरी गुड, 1, 2, 3 है ना, उसको हमें कभी पढ़ना चाहिए ना, उसका वर्ड टू वर्ड एंड इक्विवेलेंट से. तो उसमें दिया हुआ है कि एज सुन एज वी गो अवे
फ्रॉम द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्क्रिप्चर्स है ना, कि भगवान ने जो बोला है उसके विरुद्ध कुछ भी काम करते हैं हम लोग, सो इट इज श्योर वी आर गोइंग टू फेस अ बैड टाइम वेरी सून. बहुत जल्दी हमारा बुरा समय आने वाला है. और जल्दी कैन बी 1 day 2 days 1 week 2 weeks 1 month 2 months. तो वो कहते हैं कि निश्चित ही मेरा बुरा समय आने वाला है अभी. और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं वो है ना, कि भगवान कुछ ऐसा हो कि जो भी मेरा राजपाट है, मेरा राज्य है, मेरा पद है, मेरा धन है, ये सब कुछ मेरे से छूट जाएंगे ना, इसका नाश हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसके मद में आकर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया. और जब ऐसा मन में वो विचार कर रहे होते हैं, प्रायश्चित कर रहे होते हैं, ही इज रिपेंटिंग है, तो उसी समय उनको न्यूज़ मिलती है. शमीक ऋषि बहुत ही शोक के साथ है ना, इन रिग्रेटफुल मूड ही सेंड दिस मैसेज टू परीक्षित महाराज. तो परीक्षित महाराज को मैसेज मिलता है कि 7 दिन के अंदर मेरी मृत्यु होने वाली है. बट परीक्षित महाराज वॉज नॉट वरीड अबाउट दैट इन 7 days he is going to die. Rather he started thinking that am I ready to meet with my death or not. अभी मेरे पास 7 दिन बचे हैं, मेरे को 7 दिन में क्या करनी चाहिए मेरे को, what is the best thing I can do in the 7 days. उन्होंने उस समय ये नहीं सोचा कि अभी मेरे को अपना राजपाट किसको देने का है, मेरा राज कौन चलाएगा, मेरे बच्चे किधर है, पत्नी किधर है ना. He did not think about it. The first thought came to his mind कि okay, what should I do in the next 7 days which is best for my ultimate welfare. और ये सोच कर उन्होंने तुरंत ही ना गंगा जी नदी पे तट पे गए. वहाँ पे ही सेट डाउन ऑन द Ganges, the bank of the Ganges river. और गंगा जी के तट पर क्यों गए, क्योंकि Ganges is the devotee of Lord. तो going to the Ganges, taking the bath, taking the shelter of Ganges means taking the shelter of the devotee. गंगा जी भगवान के चरणों से निकली हुई है ना, तो बहुत ज़्यादा शुद्ध है. तो इसलिए ना गंगा जी के तट पे गए, वहाँ पे उनकी उन्होंने शरण ली. एंड देन ही टुक ए वाव कि अभी until I leave my body, I am not going to eat or drink anything. That's another thing we see, people when they are about to leave the body, they give up eating and drinking. The 2 reasons, one is like the fire of digestion is not there. The fire of digestion is the energy of Krishna, and as soon as the fire of digestion starts decreasing, or the fire of digestion stops, that means we are moving towards the death. Fire of digestion we create through artificial means. It may stop, may not stop, and I have not experienced, right? No, I have not experienced, but it may or may not stop, right? But the thing is that even if it doesn't stop, so the fire of digestion is low. The second, if we are on a deathbed, at that time we eat a lot. That time we have to pass urine and stool, then we have to engage others, right? So we shouldn't be engaging others, that should be our mood. And then again we should lose that तारे मध्य जीवा हति, लोगों में सुधरमती है ना. महाप्रसाद गोविंद बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, in the center of our body is what tongue है ना. It's very difficult to control. So at least at the time of deathbed, we should give up the taste of the tongue. तो कम से कम अंत समय में तो वो टेस्ट को छोड़ दें हम लोग. And yeah, so the fire of digestion is low, so don't eat. Then we don't want to engage others, right? And then we also give up the desire also to have anything. जब प्रभुपाद से भी पूछा गया था, रिमेम्बर है ना, कि एट द टाइम ऑफ डेथ, राइट, प्रभुपाद से पूछा गया ना कि आपकी कोई इच्छा है क्या. तो हर एक व्यक्ति से पूछते हैं, इवन समबडी इज गोइंग टू बी हैंग्ड, है ना, राइट, उससे भी पूछते हैं ना कि भाई तुम्हारी कोई इच्छा है क्या, राइट. सो बिकॉज दैट फाइनल मोमेंट इज अ वेरी स्पेशल मोमेंट इन एवरीवन्स लाइफ. इसलिए पूछते हैं कि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो चलो उसको पूरा कर देते हैं. बिकॉज एनी क्रिटिकल डिजायर रिमेन्स अनफुलफिल्ड, तो क्या होता है, देन अगेन we don't get, our soul don't get peace in the next life. आत्मा को शांति नहीं मिलती फिर, है ना. तो कई बार तो भूत ही बन जाती है वो, है ना. We are so much obsessed to fulfill our desires that the soul will not get the body. So the soul will be haunting here and there, and the desires are so many, है ना. भाई मृत्यु के समय तो if our desires are, प्रभुपाद जी इस परपोर्ट के लास्ट में बोलते हैं ना कि desires, है ना, और श्लोक के अंदर ही बोला है, we will discuss it, that we have unlimited desires. इस संसार में, है ना, अगर देखें सबसे बड़ी चीज़, अभी हम एक श्लोक ले रहे थे कुछ समय पहले, तो उस समय देयर इज अ कन्वर्सेशन, आई फॉरगॉट द पर्सनैलिटीज नेम है, वो दोस पर्सनैलिटीज हैं. तो पूछा गया कि भाई धरती कि पर्वत से बड़ी क्या चीज़ है, पर्वत से बड़ा समुद्र है, समुद्र से बड़ा क्या है, समुद्र से बड़ा धरती है ना, क्योंकि धरती के अंदर, है ना, अब देखें पानी कितनी, तो पूरी धरती के अंदर पानी है उसके अंदर, तो इसलिए धरती, समुद्र से बड़ा क्या धरती है ना, धरती से बड़ा क्या है ना, धरती से बड़ा क्या है अपना आकाश है, और आकाश से बड़ा क्या है, वो मनुष्य का मन है ना. कि धरती के अंदर, पूरे इस आकाश के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, अगर मनुष्य को मिल जाए ना, तो भी उसके अंदर इच्छा रहेगी कि
और कुछ मिल जाए, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी उसकी। तो अंत समय में पूछा जाता है लोगों से कि भाई तुम्हारी कुछ इच्छा हो क्या है ना। एंड मेनी टाइम्स वी सी व्हेन वी आर people are about to leave the body, they have the desire, for example, to eat, to meet somebody, to go to some place, because they have the burning desire, and the desire cannot be fulfilled. और यह पूरे समय तक, पूरी जिंदगी में जिस चीज की हमारी इच्छा रही ना, अंत समय हमारी वो इच्छा होती है. Suppose you like to eat something, right? So just before that, okay, people have the desire, okay, let me have that, rasgulla or samosa or gulab jamun, whatever it is, So it comes naturally. We see, we have the experience, right? So the point is that the things we are attached, we have been attaching ourselves throughout our life. कि हम जिस चीज़ से पूरी ज़िंदगी भर हम जुड़े रहते हैं और जो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी लगती है इस पूरी ज़िंदगी में, जिस चीज़ को हम प्राप्त करना चाहते हैं नहीं मिलती हमें, और we love something so much, something means there's something to eat, something our family members, our house, our car, anything, So those desires starts coming up just we are about to leave our body, and it's very dangerous. तो कहते हैं अंधकाले च तो मामे स्मरण मुक्तवा कलिग्रा सप्रयाति मद भाव याति नास्यत्र, कि अंतकाल में अंतकाले च तो मामे स्मरण मुक्तवा कलिग्रा. कृष्ण भगवान भगवद गीता में क्या बोले? अंतकाल में हमें किस चीज़ का स्मरण होना चाहिए? कृष्णा का स्मरण होना चाहिए. अगर वो हुआ then that's best, क्योंकि फिर भगवान के धाम में जाएंगे. It's like going to our own house. अभी जो ये घर है, ये हमारा घर थोड़ी है अभी, है ना, जहाँ पर हम लोग बैठे हैं संसार में. That's why we are restless. Now we have left our house in Abu Dhabi, right? And here in Dubai, Sharjah, so we are staying in a hotel. We are going to devotees' houses and all. So for some time it looks nice, right? For a change. But after a few days, no, I have to go back. I have to go back. I have to go back, right? घर जाना है, तो बेचैनी शुरू हो जाती है. So we don't find the peace in this world, in this, other places where we are enjoying. So same thing in this material world also, we are restless, because we want to go back, we want to go back to our ultimate house, जो हमारे पिताजी का घर है, our ultimate father's house है. तो परीक्षित महाराज का भी he gets to know कि अभी 7 दिन रह गए अभी, तो खाना पीना छोड़ देते हैं सबसे पहले तो कुछ खाऊंगा पिएगा नहीं, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू फोकस ऑल हिज एनर्जी, इन रिमेम्बरिंग द कृष्णा. मैंने आपको पता है लोग मृत्यु से पहले खाना पीना छोड़ देते हैं. सो यू कैन लीव द खाना, यू कैन लीव द फूड एंड ड्रिंक एंड फूड एंड खाना पीना छोड़ दें, बिकॉज अवर फायर डाइजेशन इज नॉट. दैट्स वन रीजन. सेकेंड, यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम in eating and drinking. Rather, you want to use every moment of life, the leftover moments, in remembering Krishna. That's another reason people, they don't eat or drink just before the final moment arrives. परीक्षित महाराज छोड़ के गंगा जी के तट पर चले जाते हैं, और यहाँ पर पूरे विश्व में मालूम पड़ता है कि भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त शरीर छोड़ के जाने वाला है, और उसने इतनी भयंकर प्रतिज्ञा करी है कि 7 दिन तो बिना खाए पिए रहना, इट्स नॉट इजी थिंग, और वो भी राजा का है. परीक्षित महाराज पूरे विश्व के राजा थे, तो इमीडिएटली सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने. तो सब कुछ छोड़ना, खाना पीना भी छोड़ना, और जो श्राप है उनको मालूम है डेथ कैसे होगी. अगर मालूम पड़े हमको 7 दिन के बाद सांप आने वाला है और हमको आगे कहीं काटेगा, है ना, तो भाई से ही हमारे प्राण निकल जाएंगे. 7 दिन तक बचेंगे नहीं हम लोग, है ना, राइट. और सोच के, है ना, 7 दिन से पहले ही प्राण निकल जाएंगे हमारे. लेकिन परीक्षित महाराज को वो भय नहीं है उस समय, ना, उनको, है ना. सब ऋषि मुनि को मालूम पड़ता है कि भगवान का बहुत बड़ा भक्त शरीर छोड़ने वाला है, तो सब वहाँ पर आके इकट्ठा हो जाते हैं. तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि मुझे मालूम है कि तक्षक नाग आकर मुझे काटेगा, है ना, लेकिन तुम उसकी चिंता मत करो, है ना. लेट हिम कम एंड बाइट मी. लेकिन तुम क्या करो, तो कहते हैं कि तुम गायता विष्णु गाता, है ना, कि तुम भगवान के, विष्णु मतलब कृष्ण, है ना, गाथा मतलब उनकी जो लीलाएं है ना, तुम उन लीलाओं को वो ये कि बोलते रहो, है ना. वो कहते हैं गायता, यू कीप सिंगिंग द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड. एंड कीप सिंगिंग मीन्स ही सेड ओके, यू कीप, यू सेलिब्रेट, है ना, राइट. व्हेन डू वी सिंग सॉन्ग, है ना,
when we are happy, when something to celebrate. So Parikshit Maharaj, he doesn't have any fear of death, Rather, he is telling everybody who has come, किसी का हालचाल नहीं पूछा उन्होंने, सबको नमस्कार किया, आदर सत्कार किया है But he is not spending the time, in doing any other thing, He simply forgot what will happen to my kingdom, what will happen to my family, child and all. Simply focused on one thing, what is best for me in these 7 days. We spend whole our life, right, in maintaining our body, not doing the best for what is for our soul. We all know, प्रभुपाद जी परपोर्ट के अंदर भी बोलते हैं, तात्पर्य के अंदर है अभी शुरू में बोलते हैं कि the teaching of Bhagavad Gita starts from where? कि I am not the body, I am the soul. Right? That's a fact. कोई नास्तिक हो उसको भी समझ में आएगा. इसके लिए हमको धार्मिक होने की जरूरत नहीं है. आत्मा है, हम लोग शरीर नहीं है. इसके लिए we don't have to be religious. Everybody can understand. Right? After I leave my body, everything is same. Hand is same, leg is same, mouth, ears, everything is same. But nothing will move. Why? Because soul is out. So essentially what we are soul. हम लोग आत्मा हैं. हम लोग शरीर नहीं है कि नहीं? That is a fact. Everybody can understand. But the whole life we spend in what? पूरा जिंदगी पर हम किस में लगा देते हैं हम लोग शरीर के लिए लगा देते हैं. शरीर को मेंटेन कैसे करें? तो परीक्षित महाराज now is thinking, what is the ultimate welfare? What is the ultimate thing for me? सबसे अच्छा चीज मेरे लिए क्या है? Now he wants to focus his energy on that subject. तो वो कहते हैं कि you just keep singing विष्णु गाथा है. ये ऐसा नहीं कि जब सांप आए तो तुम लोग भी डर जाओ या छोड़ के भाग जाओ और you start crying. Many times when the person is about to leave the body, people around him starts crying. But if you really desire the welfare of the person, and you can control the emotion, so what you should do? You should chant the holy name, for the welfare of the person. When my father was about to leave the body, I was not there, but I was not able to see him dying. I was in Abu Dhabi that time, and my brother was there. The brother was also fearful, of seeing him leaving the body. तो उन्होंने कहा चलो उनको वृंदावन लेके जाते हैं. तो he was preparing for the ambulance, to take him Vrindavan. And in the meanwhile, he left his body. But if he was bold enough, to see someone leaving the body, he could have been near my father and chanted the holy name, chanted Bhagavatam, कुछ भी कर सकते थे, right? Which is the ultimate good for the person who is leaving the body. But लेकिन हमको खुद अपनी मृत्यु से डर लगता है और हम दूसरे को मरते हुए भी नहीं देख सकते. No, we should not cry, because if we cry, we cannot chant. But we can't stop the emotions. Why can't we stop the emotions? Because we are bodily conscious. We can't see that this is the soul. Soul is eternal. We simply see the body, right? अभी जाने वाला है, right? कि पिताजी जाने वाले, मदर जाने वाली है, right? So हम कैसे बॉडी देख रहे हैं वो है सोल नहीं देख रहे हम लोग. सोल को देखेंगे then there is no more crying. तो परीक्षित महाराज भी एक तरीके से हमको बोल रहे हैं कि गायता विष्णु गाथा, you keep singing, enjoy. I will leave my body. Takshik is coming. Let him come. Let him bite me. But you don't be worried, right? तुम्हें हाय करने की जरूरत नहीं है, right? आपका काम क्या है? What is your duty? You simply गायता विष्णु गाथा. तो वो crime should never happen. गरुड़ पुराण में दिया गया है कि after the soul leaves the body, you cry. Then whatever tears you have, the dead body has to drink those tears in. जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो लोग रोते हैं तो उसका आंखों के आंसू जो कफ निकलते हैं आंखों का सब है ये डेड बॉडी हैज टू ड्रिंक इट. तो गरुड़ पुराण का पार्ट इसलिए रखा जाता है कि लोग वहां पर आए सत्संग करें तो जिससे रोए नहीं वो लोग दे शुडंट लैमेंट, दे शुडंट क्राई. क्योंकि अगर भगवान का नाम नहीं होगा तो क्या होगा, सिर्फ बैठ कर रोएंगे ही वहां पर और क्या करेंगे. So that's why the Garuda Purana is there, and Garuda Purana will do so many other things. If you are sitting and hearing about Lord Vishnu, then okay, the crying is not there. Then second, you know that what happens to a person after the person leaves the body. Then you get to know what is the travel, how the journey is there until you reach the hell or heaven. किसके तरह दुख भोगने पड़ते हैं. So then we get to know, okay, I don't want to face the same situation, of going to the hell.
सो व्हाट आई शुड डू, आई शुड इम्प्रूव माई एक्टिविटीज, राइट, अपने जीवन सुधारना चाहिए। तो गरुड़ पुराण जो मृत व्यक्ति है उसके लिए भी है, उसके लाभ के लिए भी होती है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे लाभ के लिए है ना। क्योंकि जिसको मरण था उसका मरना था, वो तो मर गया, जो कर्म थे उसके साथ में चले गए। अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना, थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके जो कर्म है वो तो चले गए साथ में। तो गरुड़ पुराण इज मेनली फॉर अस, लेकिन लोग सोचते हैं जो मर गया उसके लिए गरुड़ पुराण है। नहीं, उससे ज़्यादा हमारे लिए वो है ना, हमारे कल्याण के लिए। और परीक्षित महाराज वो अपनी अंतिम इच्छा बोलते हैं, वो है ना, ये भागवत में बोला है ना, ये इसी श्लोक के ना अगले श्लोक में 1.19.16 है। 1.19.15 में तो परीक्षित महाराज बोलते हैं कि तुम्हें ना भगवान के नाम का गाया था, विष्णु गाथा, वो करते रहो। तो फिर मानो कि उनसे पूछा गया कि भाई तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है ना, तो वहाँ पे सब साधु संत इकट्ठे हो गए थे ना, तो बोला कि अभी तुम्हारी इच्छा क्या है। तो फिर उस समय बोलते हैं, परीक्षित महाराज बोलते हैं कि पुनश्च भूया भगवती अनंते रति प्रसंगश्च तद आश्रयेषु महत्सु याम याम युपयाम सृष्टि मैत्रेस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य। तो उनसे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, व्हाट इज योर लास्ट डिजायर है ना। तो ही इज वेरी हम्बल है ना, परीक्षित महाराज बहुत ही विनम्र थे। वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, इतने शुद्ध भक्त थे कि भगवान खुद उनको बचाने के लिए आए माँ के गर्भ से, क्योंकि माँ के घर में उनको दर्शन हुए ना भगवान के। इतने शुद्ध भक्त थे, पश्चाताप भी किया, धार्मिक राजा थे, लेकिन उनके मन में कभी ये भाव नहीं था कि ये मेरा अंतिम जन्म है, या मेरा अंतिम, दिस इज माई लास्ट बर्थ, ये शरीर छोड़ने के बाद मेरी मुक्ति होने वाली है ना। उनको लग रहा था कि मैंने बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, तो अभी मेरा अगला जन्म होने वाला है ना, मनुष्य बनूंगा मैं ना। और ये भी नहीं मालूम तो मनुष्य बनेंगे नहीं बनेंगे, वो तो कहता है कहाँ पे मेरा जन्म हो ना, कहीं पे भी मेरा जन्म हो। तो क्या उन्होंने 3 चीजें बोली उन्होंने ना, उनकी 3 इच्छाएं थी है ना। तो उनकी 3 इच्छाएं क्या थी, पुनश्च भूयात्, भगवती अनंते रति ही, भगवती अनंते रति ही, कि जब मेरा जन्म हो, कहीं पर भी मेरा जन्म हो, लेकिन ये हो कि मेरी भगवती अनंते रति ही, कि जो अनंत भगवान है, भगवती अनंते, उसमें मेरी रति रहे। ये जैसे छोटा बच्चा है ना, उसकी रति किस में होती है, खेलने के लिए होती है ना, उसकी कहीं पर भी जाएगा उसको टॉय चाहिए खेलने के लिए। धनी व्यक्ति उसकी रति कहाँ होती है, धन कमाने में होती है, देखता है किस तरह धन आ जाए। शराबी व्यक्ति उसकी रति कहाँ होती है, उसकी शराब के अंदर होती है। ऐसे जो बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ने वाला होता है उसकी रति कहाँ होती है, उसकी पढ़ने में होती है, राइट। तो ऐसी रति हुआ है ना कि हमेशा मन भगवान की सेवा में सेवा ढूंढता रहे। और प्रसंगश्च तद आश्रयेषु, प्रसंगश्च तद आश्रयेषु, लेकिन फिर उनको याद है भगवान में रति कैसे होगी है ना, भगवान में रति कैसे होगी। तो फिर वो कहते हैं प्रसंगश्च तद आश्रयेषु, कि मैं उन लोगों का संग करूं जिन्होंने आपका आश्रय लिया हुआ है। इसका अर्थ है कि मैं आपके भक्तों का संग करूं। फिर उन्होंने सोचा कि भाई संसार में सारे तो भक्त नहीं है, सारे तो भगवान के भक्त नहीं है ना। मेरे मन में भाव हुआ कि सिर्फ भगवान के, जो भगवान के भक्त हैं उनसे संग करूं, तो इसका मतलब मैं बाकी लोगों से द्वेष करूंगा मैं ना, और किसी से भी द्वेष करो तो मेरी मुक्ति नहीं होगी है ना, और भगवान मेरे को पसंद नहीं करेंगे ना। तो फिर कहते हैं महसु याम याम युपयाम सृष्टि मैत्र यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य। फिर कहते हैं कि ऐसा हो कि संसार में जितने भी लोग हैं, आई शुड हैव द फ्रेंडली रिलेशनशिप विद देम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी हम एक मोटिवेशन स्टोरी पढ़ रहे थे, बहुत पहले पढ़ी थी हमने ना। तो एक व्यक्ति की ना मृत्यु होने वाली थी है ना, तो उसकी एक आदमी से बनती नहीं थी, उसका कुलीग था, वेरी गुड कुलीग, उसका दोस्त भी था, उसकी बनती नहीं थी उसके ना, तो उनके आपस में दुश्मनी हो गई है ना। तो उसको डॉक्टर ने बोला कि भाई तुम जी भी सकते नहीं भी जी सकते ना, यू मे हो मे नॉट सर्वाइव है। तो उसको लगा कि यार ये तो मेरा इतना पुराना ऑफिस का कुलीग था, इससे मेरी थोड़ी दुश्मनी थी, राइट। तो उसको बुलाता हूँ मैं, जाने से पहले सब हिसाब किताब क्लियर कर देता हूँ, राइट। तो उसने उसको बुलाया कि भाई ऐसा ऐसा है, ये भी डॉक्टर ने बोला है, आई मे नॉट सर्वाइव। तो कहते हैं कि जो हमारी पहले की दुश्मनी थी
चलो उसको भूल जाते हैं ना, राइट. तो फिर कहता है कि लेकिन बट बाई चांस इफ आई डोंट डाई देन वी विल हैव द सेम पोजीशन, देन आई विल नॉट टॉक टू यू, राइट. तो हमारी स्थिति ये है ना कि मरते समय भी हम है ना अकाउंट क्लियर नहीं करना चाहते. वो है ना दुश्मनी इतनी हमारे भी, बट राग द्वेष विमुक्त इष्टु है ना, हमने पढ़ा था ना भागवत गीता के जो अपना ये स्थित प्रज्ञा के श्लोक पढ़ रहे थे हम लोग. वी वर डिस्कसिंग कि वी हैव द so much strong liking and disliking to a person or to an object, to a situation. We don't want to leave until the last moment. That's why when we are dealing with this, when we are in this material world, है ना, जब हम संसार में रहते हैं तो हमको हमेशा देखते रहना चाहिए हमको, है ना, कि do have the strong liking or disliking to the material thing. Anything strong liking, any strong disliking is the cause of trouble. कोई भी चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है या बहुत ज़्यादा खराब लगती है तो दोनों ही हमारे दुखों का कारण होती है. Instead of having the strong liking and disliking, we should have the reasonable balance in our liking or disliking, thinking and not thinking, right? Many times people have the disliking for the non-veg, right? Fine, we don't eat non-veg, right? But disliking, the hate, हमने डिस्कस भी किया था. हाउ डू आई नो दैट आई लाइक और डिसलाइक समथिंग, एंड व्हाट आर द सिम्टम्स. वी शुड नॉट बी हेटफुल टू एनी सिचुएशन. कई बार लोग है ना नॉनवेज देख के मुंह फेर लेते हैं ना. कोई गंदी जगह में बास आ रही थी, है ना, वन थिंग इज ड्यू टू द पॉल्यूशन, सेकेंड इज बिकॉज वेरी स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग, राइट. सो वी शुड ट्राई टू रिमेन न्यूट्रल, एंड वी शुड ट्राई टू रिमेन न्यूट्रल. वी नेवर नो व्हाट सिचुएशन वी मे हैव टू फेस इन अवर लाइफ. हमको नहीं मालूम कि जिंदगी में हमारे को क्या सिचुएशन फेस करनी होगी. सो व्हेनेवर वी हैव एनी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और डिसलाइकिंग टू एनीथिंग, वी शुड रिमेंबर दैट सिचुएशन इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा, राइट. वी मे हैव टू फेस द सेम सिचुएशन और वी मे नॉट बी इन द सेम सिचुएशन. सो लीव एवरीथिंग ऑन कृष्णा, सो दैट इट इज कृष्णाज अरेंजमेंट दैट आई हैव टू सी दिस थिंग, आई हैव टू फेस दिस सिचुएशन, आई हैव टू मीट विद दिस पर्सन, राइट. सो जस्ट टॉलरेट इट. कृष्ण भगवान कहते हैं ना मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय सी कृष्ण सूत्र, टॉलरेट करो, है ना, टॉलरेट. सो टॉलरेट डजंट मीन सुख और दुख, है ना. जो भी चीज़ हमारे सामने आया है ना, जो भी व्यक्ति सामने आया, मित्र दोस्त जो भी सामने आया, बिकॉज बिफोर वी लीव द बॉडी एनी अकाउंट इज अनसेटल्ड, एनी वन अकाउंट अनसेटल्ड, यू हैव टू टेक द बर्थ अगेन. एनी वन अकाउंट अनसेटल्ड मीन्स किसी भी जीव के प्रति हमारे मन में घृणा रह गई है ना, नहीं द्वेष रह गया. सो दैट मीन्स अगेन फिर वो 84 लाख योनियां है ना, उसका सर्कल शुरू हो गया. सो वी हैव टू कीप, हाँ जी, या अटैचमेंट मीन्स स्ट्रॉन्ग लाइकिंग. अटैचमेंट मीन्स व्हाट? स्ट्रॉन्ग लाइकिंग. स्ट्रॉन्ग लाइकिंग shouldn't have that strong liking or even disliking. Everything should be reasonable. We have to be. हमने एग्जाम्पल दिया था ना, वो ट्रेन का होते हैं ना, हम लोग ट्रेन में बैठे होते हैं, राइट. So we are in the train. When we are in the train, imagine you are sitting in the train. हम लोग सब लोगों ने इंडिया में ट्रेन में ट्रैवल किया, राइट. कोई भी ऐसा नहीं जिसने ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया. और ओवरनाइट जर्नी होती है, स्लीपर बर्थ मिलती है ना. So if you are in this train, then do we have any strong liking or disliking to anything which is in the train? नहीं होता. क्यों नहीं होता? स्टॉप होता है ना, मतलब हाँ, थोड़ी देर का हिसाब किताब है, राइट. थोड़ी देर का हिसाब किताब है, राइट. तो दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ऑल्सो लाइक ए ट्रेन, है ना. थोड़ी देर का सफर है, राइट. थोड़ी देर का मतलब 20 साल, 50 साल, 100 साल, 80 साल, कुछ नहीं मालूम है. लेकिन सफर का वो अंत तो होना ही है ना. ट्रेन की भी कई बार बहुत लंबी जर्नी होती है ना, राइट. तो क्योंकि थोड़ा इसलिए वी डोंट हैव द स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और डिसलाइकिंग. है कितने सारे लोगों से मिलते हैं ट्रेन में, है ना, तो कभी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है. ट्रेन में जो भी हमारा आमने सामने सामान दिखता है ना, वी एडजस्ट अवर सेल्स. है कोई चीज़ खराब है, एडजस्ट कर रहे हैं. भाई वहाँ पे बिजली का स्विच नहीं चल रहा है ना, वो क्या करेंगे उसका? इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, आएगा इलेक्ट्रिशियन? नहीं आएगा. एडजस्टेड, राइट. और हमें ट्रेन में सफ़र किया हुआ है 3 टायर में, है ना, वो कभी वो पंखा भी नहीं चलता वहाँ पर, है ना. और चलता दिन तेज आवाज़ देता है, वो करता है ना. और सबसे ऊपर की बर्थ मिली होती थी हमको, है ना, यू नो, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, टॉप बर्थ, है ना, सबसे ऊपर की बर्थ, है ना. और वहाँ पे सो रहे, पंखा भर घर कर रहा है ना. और क्या करेंगे उस समय? क्या करते हैं? एडजस्ट, है ना.
एडजस्ट है ना, नो कंप्लेंट है ना। जो भी सफ़र में आता है हमारे सामने आके बैठता है बराबर में, उसकी पास से बदबू आ रही होगी ना, तो भी बैठेंगे, क्या करेंगे ना, राइट। वी टॉलरेट है ना, द पॉइंट इज दैट वी टॉलरेट है ना। कितने सारे लोग चढ़ते हैं उतरते हैं ना, कोई बात नहीं, आएंगे चढ़ेंगे। खाने पीने के लिए क्या होता है ना, हमारी चॉइस होती है उसमें, जो साथ में थोड़ा बहुत उससे तो मैनेज करने का है, नो वेराइटीज नथिंग। सोने के लिए कितनी छोटी सी जगह होती है ना, राइट, कितनी छोटी सी जगह होती है। ये सोफे की जितनी जगह है ना, 60 सेंटीमीटर है ना, ये 60 सेंटीमीटर बाय 150 सेंटीमीटर, आई थिंक दैट्स द साइज ऑफ द बर्थ। उसी में सोते हैं, आराम से नींद भी आ जाती है कि नहीं। लेकिन जैसे ही घर पे आते हैं फिर कंप्लेंट शुरू हो जाती है, फिर लगता है कि वो बेड छोटा है ना, वो है कि नहीं। तो घर पे आके हमको बेड छोटा क्यों लगता है वो, हाँ क्यों छोटा लगता है वो, नहीं क्योंकि लगता है कि घर हमारा परमानेंट है वो, कि उसको हम कभी छोड़ के नहीं जाने का वो। और घर में आते ही फिर हमारी डिमांड शुरू हो जाती है कि हमको अचार भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए ना, रसगुल्ला भी चाहिए, राइट। और ट्रेन में बैठे हो तो कोई परेशानी नहीं है ना, तो घर में आके फिर हमारा दोबारा वही सब शुरू हो जाते हैं। और ट्रेन में क्या बिस्तर भी नहीं होता है प्रभु, चादर भी नहीं होती कभी कभी, तो है ना, हम लोग सोए हुए वैसे ही है, तकिया भी नहीं होता है ना, और सिर के नीचे हाथ रखते हैं, सो जाते हैं और अच्छी नींद आती है ना। तो भागवतम में तो बोला गया ना, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ना 2nd कैंटो में, कि जब हमारे हाथ हैं तो व्हाट इज द नीड ऑफ पिलो है। तो दैट्स द थिंग। तो ट्रेन का एग्जांपल क्यों दिया हमने, क्योंकि समझने के लिए कि इफ वी थिंक दैट एवरी सिचुएशन इज टेम्परेरी है, एवरी मीटिंग इज टेम्परेरी, एवरीथिंग इज टेम्परेरी है, देन वी आर नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग। और फिर स्ट्रॉन्ग लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं होगी ना, बट वी डोंट थिंक दैट एवरीथिंग इज टेम्परेरी है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव द अटैचमेंट ऑल्सो। एवरीथिंग वी हैव, हमारी बॉडी लगता है परमानेंट, हमेशा रहेगी। बॉडी से जो भी हुआ, बॉडी से लिए जो भी लगता है हमेशा रहेगा। धन कमाए लगता है हमेशा रहेगा, प्रॉपर्टी हमेशा रहेगी, सब कुछ लगता है हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। तो इसलिए कभी डिटैचमेंट हो ही नहीं पाता है। और मृत्यु के समय हमको भय किस चीज़ का होता है ना, भय किस चीज़ का होता है कि जो चीज़ अपनी है उसको छोड़ने का भय होता है। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ना, अंत काले च्युत पुरुष आगते गत साध्वस। ये अंत काले, अंत काल के समय, आगते, आगते मतलब आएगा जरूर है, हैविंग अराइव्ड। प्रभुपा जी कहते हैं हैविंग अराइव्ड। द फाइनल मोमेंट डजंट नीड अवर इन्विटेशन। जो हमारे डेथ टाइम है, डेथ, वो जो फाइनल मोमेंट, ऐसे नहीं उसको इन्वाइट करेंगे तो वो आएगा, वो है ना, वो बिना बुलाए आएगा वो। लेकिन आने से पहले नोटिस आते हैं हमारे पास, वी कीप गेटिंग द नोटिसेस। एक बार व्यक्ति मृत्यु हो गई, वो यमराज जी के पास पहुंच गया। वो यमराज जी ने बोला तुम्हें नरक में जाने का है, क्यों, तुमने बहुत सारे पाप कर्म किए हैं। अच्छा, आपने पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बता दे तो थोड़ा पुण्य कर्म कर लेता मैं, है ना। वो कहते हैं कि इस धरती के अंदर सब चीज़ों के लिए नोटिस आता है ना। तो बिजली का बिल थोड़ा लेट हो जाए तो नोटिस देते हैं बिजली का डिस्कनेक्ट करने से पहले, राइट। टेलीफोन का बिल जमा नहीं करवाओ, वहाँ से नोटिस आता है, राइट। कोई कोर्ट केस होता है, वहाँ से नोटिस आता है। वो कहते हैं दिस इज वेरी अनफेयर, कि आपकी जो जगह है, आप तो धरती लोग से भी ऊपर हो आप, है ना, नहीं, तो आपके वहाँ से नोटिस नहीं, ऐसे कैसे हो गया है ना। तो यमराज जी कहते हैं बेटा तेरे को तो बहुत सारे नोटिस दिए, तूने कभी ध्यान ही दिया उसके ऊपर, है ना। वो कहते हैं क्या नोटिस थे, है ना। वो कहते हैं तेरी आंखें कमजोर हुई, तेरा नोटिस था, है ना। आंखों पे चश्मा लगा, नोटिस था वो, है ना। तेरी पीठ में दर्द हुआ, वो नोटिस था, है ना। तेरे पैर कमजोर हुए, वो नोटिस था, है ना, राइट। फायर ऑफ डाइजेशन का वो नोटिस था, है ना। तो एज सुन एज वी आवर बॉडी स्टार्ट बिकमिंग वीक, दैट्स अ नोटिस ऑफ यमराज, है ना, कि नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द डेथ, है ना। व्हाई? बिकॉज जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन, इसे जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु अशम भावी, है ना। और जन्म और मृत्यु के बीच में क्या होता है? जरा व्याधि, है ना। जरा मतलब बुढ़ापा, एज वी प्रोग्रेस इन अवर लाइफ, राइट, दैट मीन्स वी आर बिकमिंग एजेड, एंड देन जैसे एज वी प्रोग्रेस इन अवर लाइफ, व्याधि मीन्स डिसीज विल कम, है ना। So as soon as we start getting the diseases, you know, the body doesn't cooperate with us. That means the Krishna is sending the notices. Krishna is sending the notices. We should not ignore those notices. We should start preparing ourselves for the final moments. अंत काले तो पुरुष आगते गत साधु सकते. Don't be fearful, है ना. बोल्ड है ना. छिंद्याद असंग शस्त्रेण.
छिंद्याद असंग शस्त्रेण, तो कहते हैं कट ऑफ द डिटैचमेंट, कट ऑफ अटैचमेंट. अटैचमेंट टू व्हाट? देहे स्प्रहाम देहे नु. स्प्रहाम मतलब डिजायर्स है, एंड इट्स नॉट द डिजायर टू हैव द हाउस, मनी एंड अदर थिंग्स, यू नो, राइट. स्प्रहाम का अर्थ होता है, you know what is the meaning of spraha? We discussed in the class, no? Spraha means what? Desire to have the bare minimum necessities. The bare minimum necessity is what for my survival? It's like eating, you know. Eating को छोड़ दो, then पानी. पानी को छोड़ दो, air, right? You're right. So spraham, we shouldn't desire even to have the oxygen. Means we leave everything on Krishna. If Krishna wishes, I will get the oxygen. Doesn't wishes, I am fine to leave the body. That's the stage. So the point is that if we have strong liking and disliking to so much paraphernalia we have accumulated, then it's very difficult to give up, right? मृत्यु के समय किस किस को छोड़ेंगे हमें ना, कि ये अकाउंट क्लोज करना है, इसको क्लोज करना है, इसको क्लोज करना है, इसको क्लोज करना है, उतने देर यमराज जी आ ही जाएंगे, वो है ना. So better don't. We should have the minimum accounts in the material world. अकाउंट्स का बैंक अकाउंट्स नहीं कह रहा, बैंक अकाउंट तो है ही है, उसके साथ में और जितने जो रिलेशनशिप हैं, दोज आर ऑल अकाउंट्स हैं. उसमें हमारा कर्मों का खाता है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट. जितने कम होंगे उतना उसको क्लोज करना इजीली होएगा. वो कृष्ण भगवान कहते हैं ना कि अगर किसी के ऊपर कृपा करता हूँ मैं, तो पहली चीज क्या करता हूँ? हरिष्य धनम है ना, सबसे पहले सारा धन ले लेता हूँ उसका मैं, तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो क्या करेगा? अल्टीमेटली मेरी शरण लेगा ना, अगर ही इज फॉर्चुनेट है. सो if you are in that situation, don't try to earn more and more money. The situation given by the Krishna, adjust, chant, and focus on chanting. The death is going to be very miserable. महाराज जी कहते थे ना, if you don't settle our accounts, then the death is going to be very miserable, because the pain of leaving this paraphernalia is very painful. Imagine हमने कोई एक घर बनाया, मालूम पड़े वहाँ पे किराए का, हम घर किराए पे देते हैं कई बार, मालूम पड़े किराएदार घर छोड़ के नहीं जा रहा है ना, तो व्हाट इज द सिचुएशन, है ना. लगता है कि बर्बाद हो गया मैं, राइट. कहते हैं ना बर्बाद हो गया मैं, बिकॉज वी आइडेंटिफाई अवर सेल्स विद दैट हाउस, है. दैट्स आसक्ति है. तो दैट्स अ सिम्पटम ऑफ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट. तो वी शुड ट्राई टू हैव द मिनिमम अकाउंट्स, मिनिमम रिलेशनशिप. ट्रेन में कैसा होता है रिलेशनशिप हमारा? राम राम की, है ना, जयराम जी की, जयराम जी की, कहते हैं ना. हम हमारे पिताजी के सबसे जयराम जी के रखने का है ना, मतलब फ्रेंडली रिलेशनशिप. जैसे ट्रेन में लोग चढ़ते उतरते हैं ना, फ्रेंडली फ्रेंडली फ्रेंडली, राइट. टॉलरेट टॉलरेट टॉलरेट, राइट. तो ऐसे ही संसार में जितने भी लोग हैं, सबसे फ्रेंडली रिलेशनशिप रखने का. सॉरी, हाँ, जयराम जी की है ना, जयराम जी की है ना. कोई अच्छा है बुरा है, हमें क्या मतलब है ना. हमारा काम है जो भी मिल जाए सबको जयराम जी की फ्रेंडली रिलेशनशिप, हमको भक्ति करने का, उनको भक्ति करने, साथ में भक्ति करने का. नहीं तो कुछ समय बाद वो छोड़ के चले जाएगा या हम छोड़ के चले जाएंगे, राइट. नथिंग इज गोइंग टू स्टे परमानेंट. सो दैट्स हाउ वी शुड डू, है ना. सो एनीवे, परीक्षित महाराज है ना, वो कहते हैं 3 इच्छाएं मेरी, है ना, राइट. आपको बताया है ना कि दैट्स हाउ आवर शुड बी डिजायर, कि व्हेन वी आर लीविंग अवर बॉडी, द बेस्ट थिंग व्हाट वी शुड डिजायर, वी शुड हैव द एसोसिएशन विद कृष्ण. अब या तो भगवान के धाम में हो सकता है, और या इस संसार में कहीं हो सकता है. और एसोसिएशन कब मिलेगा? और सॉरी, भगवान की, सॉरी, नॉट एसोसिएशन, रति, भगवान में अति अटैचमेंट हुआ है. तो अभी हमारी अटैचमेंट किधर है? अभी हमारी अटैचमेंट कृष्णा के अलावा सभी जगह है ना. अभी हमारी रति कृष्णा में नहीं है ना. रति इज ए वेरी स्ट्रांग अटैचमेंट. कृष्णा से अभी हमारा अटैचमेंट है, लेकिन रति नहीं है अभी, है ना. अटैचमेंट है, इसलिए तो हम लोग जप करते हैं, 1 माला, 2 माला, 4 माला, 16 माला, लेकिन रति नहीं है. रति होगी तो जप करते समय हमारा मन पूरा वहाँ पे रहेगा. जैसे बच्चा है ना, बच्चे की रति खेलने में होती है, तो उसका पूरा मन टॉय में रहता है, आसपास क्या हो रहा है टोटली इंडिफरेंट, है ना. अब जैसे बच्ची थी ना यहाँ पर, उसकी रति है घूमने में, शी इज कम्प्लीटली, वो ट्रांस में है, वो है ना, शी इज इन द ट्रांस. आसपास कितने लोग बैठे हैं, कथा हो रही है, नहीं, कोई हंस रहे हैं, उसने कपड़े पहन रखे नहीं पहन रखे, शी इज टोटली इंडिफरेंट, है ना. उसका मन कहाँ खेलने में लगा हुआ है ना. दैट्स अ रति, है ना. हमारी रति नहीं है.
भगवान हमारी रति नहीं अभी तक पूरी है, क्योंकि रति हमारी बहुत सारी दूसरी चीज़ों में है, तो इसलिए हमको भय भी रहता है। ये सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि चिंध्या दसंग सृष्टि ना स्पृहाम, कि हमारी स्पृहा भी नहीं होनी चाहिए, मिनिमम की हमें ऑक्सीजन मिल जाए वो भी नहीं चाहिए हमको है। और फिर देहे, कि हमारी रति किस में होती है, ये हमारे देह में होती है ना, सबसे ज़्यादा रति हमारी देह में होती है। क्यों? क्योंकि संसार में हो सकता है कोई व्यक्ति अकेला हो ना, जैसे कि माता जी भी नहीं, पिताजी भी नहीं हो, शादी भी नहीं करी हो, तो बच्चे भी नहीं होंगे, पत्नी भी नहीं होगी, राइट। तो कम से कम देह तो है ना वो। तो कई व्यक्ति होते हैं संसार में ना, अकेले होते हैं, तो उनकी क्या मरते समय देह में आसक्ति होती है, कि देह नहीं छोड़ना चाहते, लगता है कि कुछ समय और मिल जाए, कुछ समय और मिल जाए, कुछ समय और मिल जाए। और फिर अनु, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं देहे अनु, अनु का अर्थ होता है कि देह से जो जो चीज़ें उत्पन्न करी है, तो वो कहते हैं उससे भी तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा होएगा तो फिर तुम्हें भय नहीं होगा। तो खैर एनीवे, परीक्षित महाराज अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, और उसके बाद में परीक्षित महाराज है ना, जो भी साधु मुनि हैं, साधु हैं, संत हैं, ऋषि मुनि हैं, उनसे 2 प्रश्न पूछते हैं। उन्होंने अपनी इच्छा बता दी है ना, मरने के लिए बिल्कुल तैयार है, उनको भय नहीं है, उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा भी बता दी है ना, उनके मन में क्या है। तो अभी लेकिन 7 दिन है ना, बातचीत करनी है कुछ, अभी क्या करेंगे। तो वो कहते हैं कि महाराज मुझे 2 चीज़ें पूछनी है, 2 चीज़ें बताइए आपने। तो क्या 2 चीज़ें हैं कि सर्वात्मनाम म्रियमाणेश्च कृत्यम है, सर्वात्मना म्रियमाणेश्च कृत्यम, ये प्रभु श्लोक 1.19.24 है कि कृत्यमानम करने योग्य है ना, कि मुझे बताइए कि सर्वात्मना मतलब सभी लोग जो है ना संसार में, और म्रियमाणस्य, और जो मरने वाले व्यक्ति हैं, कृत्यमानम, कि उनके लिए क्या करने योग्य वस्तु है। ठीक है ना, संसार में 2 तरह के लोग हैं, ये तो सब लोग जो जीवित हैं, और जो जीवित हैं उसमें से कुछ व्यक्ति मृत्यु के नज़दीक हैं। सही है, ये गलत है? हाँ, ये सही, दिस इज द फैक्ट है कि हमको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैं अभी मृत्यु के नज़दीक नहीं हुआ है ना, बाकी सब लोग जो हॉस्पिटल में मृत्यु के नज़दीक है ना, राइट। एवरीबडी इज नियर डेथ है। तो सर्वात्मना म्रियमाणस्य है, कि सभी लोगों के लिए, और विशेष रूप से जो मृत्यु के नज़दीक है ना, उनके लिए क्या कृत्यमान करने योग्य चीज़ है ना। और उसके बाद में वहाँ पर परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं, और फिर इस बीच में सुखदेव गोस्वामी को मालूम पड़ता है ना कि अभी भगवान का इतना बड़ा भक्त शरीर छोड़ के जाने वाला है, और उनको मालूम था कि इसके मन में जिज्ञासा है अब भगवान की कथा सुनने की। तो सुखदेव गोस्वामी वहाँ पर पधारते हैं वो, और सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करते हैं वो, और सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करके सुखदेव गोस्वामी फिर दोबारा वही प्रश्न करते हैं वो है ना, क्योंकि ही वांटेड टू हैव द परफेक्ट आंसर है। उनको मालूम पड़ गया कि सुखदेव गोस्वामी के सभा में जितने लोग हैं ये इनसे भी बड़े हैं ना, क्योंकि सभी लोगों ने स्वागत किया सुखदेव गोस्वामी का है ना, तो उनको लगा कि भाई जो इनसे आंसर मिलेगा वो आंसर परफेक्ट होएगा वो है ना। तो जैसे भाई अभी यहाँ पर कथा में बैठे हुए हैं, ये कथा में आपको कुछ प्रश्न है, राइट, आपने प्रश्न मेरे से पूछा, और उसी बीच में महाराज आ गए ना, तो आपको क्या लगेगा, महाराज से पूछो ना, बिकॉज ही कैन गिव द बेटर आंसर, दैट्स अ फैक्ट है ना, राइट। तो वहाँ पर भी ऐसे हो, तो वहाँ पर वो दोबारा प्रश्न पूछ रहे हुए ना, और दोबारा प्रश्न पूछ के कहते हैं कि पुरुषस्य इह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा है ना। दोबारा वही है ना कि जो मृत्यु के नज़दीक हैं उनके लिए क्या यह करने योग्य, और फिर ये तो जनरल क्वेश्चन हो गया कि उनको क्या करना चाहिए ना। तो हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं दिन में, फिर बाद में स्पेसिफिकली पूछते हैं, और क्या पूछते हैं कि श्रोतव्यम है ना, श्रोतव्यम क्या चीज़ सुनने योग्य है। फिर पूछते हैं कि जप्यम क्या चीज़ जाप करने योग्य, बोलने योग्य है। फिर स्मर्तव्यम क्या चीज़ याद करने योग्य है। भजनीयम क्या चीज़ पूजने योग्य है। क्या चीज़ कर्तव्यम क्या चीज़ करने योग्य है, स्पेसिफिकली पूछते हैं। और इसके बाद में फिर सुखदेव गोस्वामी भागवतम शुरू करते हैं, और फिर सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं कि जो तुमने प्रश्न पूछा
इसका उत्तर ये सुनने योग्य है ना। ये कहते हैं कि जो भागवतम कथा है वो सुनने योग्य है। और फिर बोलते हैं कि श्रोतव्यादि ने राजेंद्र नैनाम सत्य शास्त्र, कहते हैं कि संसार में जितने लोग हैं उनके पास सुनने के लिए हजारों टॉपिक्स है ना। कि श्रोतव्यादि ने राजेंद्र नैनाम संतरी सहस्त्र से अपश्यता मातो तत्व ग्रहेशु ग्रह मेदिनम, कहते हैं कि जो अपश्यता मातो तत्व, कि जिन लोगों ने आत्म तत्व के बारे में नहीं मालूम, हमने बोला ना जिनको अपनी आत्मा के बारे में नहीं मालूम, जिनको लगता है मैं शरीर हूँ, तो उनके लिए सुनने के लिए बहुत सारी चीज़ें, वो भागवत में थोड़ी आएंगे। वो अभी यहाँ पर इस एरिया में कितने सारे हिंदू हैं, कितने सारे लोगों को बुलाए, कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, क्यों? क्योंकि उन सबके लिए सुनने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको आत्म तत्व के बारे में नहीं मालूम। और फिर कहते हैं संसार में जितने लोग हैं वो क्या करते हैं ना, नहीं भागवत में नहीं आएंगे, क्या करेंगे उसके अंदर कि कहते हैं निद्रा हिरेतीय नक्तम विवाह ये न चौवा वया है, कि उनका रात कहाँ बीतती है ना, सोने में, बच्चे पैदा करने, और दिन क्या दिवा चारते है, कि पैसा कमाने में और कुटुंब भरने में, या तो पैसा कमाएंगे परिवार के साथ। और यही करते करते क्या होता है, फिर क्या होता है, देहापत्य कलत्र आदिषु आत्मसन्येषु असतसु अपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्चन अपि न पश्यति है ना। फिर महाराज को भी ये वाला श्लोक है ना बहुत अच्छा लगता है ना, कि देहापत्य कलत्रादिषु है ना, कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देहा मतलब हमारे शरीर, अपत्य मतलब बच्चे, कलत्रा में पत्नी और पति है ना। आत्मसन्येषु असतसु अपि है ना तेषां प्रमत्तो निधनम। ये हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं इसके अंदर चार चीज़ों में है ना, कि हमको ये नहीं देखता है कि हम जिन लोगों के लिए चीज़ें कर रहे हैं, कि हम रात को सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, राइट, दिन में काम करते हैं, धन अर्जित करते हैं, किसके लिए करते हैं, अपने शरीर के लिए, और या परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, राइट। तो ये सब क्या कह रहे हैं शुकदेव गोस्वामी, कि ये कि आत्मसन्येषु असतसु, ये जो सोल्जर्स हैं जिनके लिए हम कर रहे हैं, और कभी कभी लगता है कि हमें बचाएंगे, ये हमको सेना की तरह से मानते हैं हम इनको है ना, कि हमें बचाएंगे, कि हमारी सेना ये। कभी कभी लोगों को अभिमान होता है कि हमारे परिवार में तो 150 लोग हैं, हमारे कुंभ में 200 लोग हैं ना, हमारी शादी में हमारे घर के लोग 250-300 लोग हो जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये सेना है हमारी है ना। वसुदेव गोस्वामी कहते हैं कि दे आर असत, असत मीन्स फॉलेबल। हम सब लोग इनको क्या असेट्स मानते हैं ना, तो असेट्स का अगर उसको थोड़ा सा चेंज कर दें हम, असेट्स को क्या होता है, असेट्स मीन्स असत है ना, राइट। जिसको हम असेट्स मानते हैं वो सब असत है, राइट। जो असेट शब्द कहाँ से आया, वो असत से आया हुआ है ना। इंग्लिश में जो इन्होंने डिक्शनरी बनाई वो ये असेट्स मीन्स असत, टेम्परेरी, तेषां प्रमत्तो निधनम, तेषां प्रमत्तो निधनम। ये प्रमत्तो मीन्स मैड है, कि हम इतने पागल हो जाते हैं इन सब संसार के पीछे, कि प्रमत्तो निधनम पश्चन अपि न पश्यति, कि हम देखकर भी नहीं देख पाते हैं। और क्या देखकर भी नहीं देख पाते, ये प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बोलते हैं, यहाँ पर जो श्लोक पढ़ा ना हमने, कि हमने देखा है कि जो हमारे से पहले जो हमारे पूर्वज थे उनकी मृत्यु हो गई है। हमको मालूम है कि हमारी भी मृत्यु होने वाली है, और हमको ये भी मालूम है कि जो हमारे साथ पहले फैमिली है वो भी नहीं रहेगा है ना। फिर भी हम क्या करते हैं, हम सब इन्हीं के पीछे लगे रहते हैं। और फिर क्या होता है, ये धीरे धीरे करते करते वो अंत समय आता है, मालूम ही नहीं पड़ता अंत समय कैसे आ गया है ना। हम आबू धाबी में आए थे 2 साल के लिए है ना, अभी 28 साल हो गए अभी है ना, और लगता है कि यार 2 साल हो ही नहीं पूरे है ना। दिस इज कॉल्ड मैडनेस है ना, राइट, प्रमत्तो निधनम है ना। और यही करते करते क्या होता है कि हमको निधन का समय आ जाता है, वी कम नियर द डेथ का। हम लोगों ने सब निधन शब्द सुना है ना। हाँ, तो निधन का अर्थ क्या होता है, हाँ निधन का आपने सही बोला प्रभु है ना, कि जो धन है ना उसका विपरीत होता है निधन, धन का उल्टा क्या हुआ, निधन। तो जब हम कहते हैं ना किसी व्यक्ति का निधन हो गया, तो इसका अर्थ क्या हुआ, कि वह धन से रहित हो गया। वो जिन जिन चीज़ों को धन मानता था अब वो उससे रहित हो गया। तो संसार में सभी का निधन होने वाला है, हम सभी निधन होने वाले हैं, राइट। नहीं, आप सोच रहे हो आपको समय मिलेगा क्षमा मांगने के लिए, सो दैट्स व्हाई आई सेड नो, बेटर नॉट टू क्रिएट एन अकाउंट है ना, राइट।
कि हम अकाउंट खाता ही नहीं खोले जो क्षमा मांगने की जरूरत पड़े, है ना, या खुल भी गया तो इमीडिएटली, है ना, फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो गायता विष्णु दाता कब होगी प्रभु? व्हेन वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट हाउस, है ना। अगर जैसे मालूम है कि आपको एक घर छोड़कर अभी शेख खलीफा के पैलेस में जाने का है, राइट, तो यू विल बी सेलिब्रेटिंग, राइट, क्योंकि आपको मालूम है श्योर वहीं पे जाने का है। तो अगर ऐसे हमको मालूम है कि अभी हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज यू नो इज इनवैल्यूएबल, है ना, कि उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और हमने तैयारी भी करी है उसके लिए, है ना, सो देन वी विल सेलिब्रेट, है ना। और उससे तैयारी नहीं करी है तो फिर क्या, वो हमारा मलमूत्र निकलता है ना, क्योंकि शरीर छोड़ने से पहले यमराज जी आते हैं ना, उनके भूत आते हैं, तो इट्स सो फियरफुल, तो देखते डर लगता है, इसलिए पीपल दे पास द यूरिन स्टूल, है ना। उसका ये नहीं मालूम हमको पड़ेगा नहीं पड़ेगा, है ना, एंड दैट्स नॉट अवर बिजनेस टू नो कि उसका उसके ऊपर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, है ना। भाई उसका धर्म है, जो डिवोटी है उसका धर्म क्या है, रोना वो रोएगा, है ना, बट वाई शुड आई वरी, है ना। परीक्षित महाराज वाज नॉट वरीड कि मेरे पीछे से लोग रोएंगे हंसेंगे क्या करेंगे, वो तो कहते हैं तुम मेरे सामने बैठे हो, जस्ट कीप चैंटिंग, है ना, कीप सिंगिंग, दैट्स व्हाट आई कैन डू, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी कि वी डू व्हाट वी कैन डू, हमको क्या करना चाहिए, जो हम कर सकते हैं, जो चीज़ नहीं कर सकते ठीक है, लीव इट ऑन कृष्ण, है, हमको बस प्रयास करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकार से कहते हैं कृष्ण भगवान है, तो यही हमको प्रयास भी करने का है। तो खैर एनीवे, तो प्रभु जी श्लोक के अंदर तो बहुत सारी अभी और भी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ नहीं वो उसका चर्चा करी प्रभु उसके अंदर, है ना, लेकिन इस श्लोक से आगे प्रभु, इस श्लोक से आगे है ना कि नहीं वो हम करा प्रभु उसके बारे में चर्चा करी। तो हाँ, पश्चन अपी न पश्चाती, और फिर उसके बाद में तो इसमें प्रभुपाद जी प्रभु तात्पर्य में बोलते हैं कि although he sufficiently experienced in the matter by the dint of past experience and previous examples of his deceased predecessors, he doesn't see that the so-called fighting soldiers like the children, relatives, society members and countrymen are all fallible in the great struggle. No one will survive in this struggle with material nature. And then कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छताम अभयम। ये उत्तर दे रहे हैं अभी, है ना, जो प्रश्न पूछे थे ना, ये दो प्रश्न थे इनके कि जो संसार में जितने भी जीव हैं वो, और जो मृत्यु के नजदीक उनको क्या करना चाहिए। तो अब कह रहे हैं तस्मात् मीन्स कंक्लूडिंग, तस्मात् सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि, हाँ 2.1.5, तो ये इसका उत्तर है। और उसके बाद कहते हैं, ये इससे पहले वाला श्लोक है, मतलब 2.1.4 और 2.1.6 में बोलते हैं कि एतावान सांख्य योग्याभ्याम सर्व स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुम शांति नारायण स्मृति है। तो आपको समय मिले प्रभु ये 2.1.6 भी इसको पढ़ने का है ना, कि हमारे जन्म का परम लाभ कब है ना, जन्म का परम लाभ है अंते नारायण स्मृति है, दैट इज अवर परम लाभ है, अंते नारायण स्मृति। बताया माता इसका संक्षिप्त में ना प्रभुपाद ने इसका छोटा सा प्रपोर्ट दिया हुआ है। तो इसका ये 2.1 से लेके 2.67 तक है ना, उसका हमने सब ये सार बताया है ना। और लेकिन इसमें क्या है ना, स्वधर्म परिनिष्ठ है। स्वधर्म का मतलब हमारे जो जो कर्म कर रहे हैं हम लोग अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार है ना, हम जो भी कर्म कर रहे हैं ना उसकी परिनिष्ठा, परिनिष्ठा मीन्स परफेक्शन है। whatever perfection, whatever we are doing, the perfection is that we are able to remember Krishna. We are able to remember Krishna at the time of death. So that's how we have to mold our life, you know. It can be young boy, young child, bachelor, non-bachelor, whatever, married, unmarried, sadhu, sannyasi, koi bhi ho na. Everyone has to mold the life, you know, in such a way that we spend some time on the soul and who we are. It's not that other things we don't have to do. क्या करना है, पढ़ाई करनी है, छोड़नी है, करना है ना, हाँ वेरी गुड, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई छोड़नी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ क्या करने का, जो तुम्हें समय मिलता है ना, थोड़ा जैसे भी यू आर हियरिंग है, सिटिंग द कथा, दैट्स व्हाट यू शुड डू है, उतना करने का है ना। सोले माला नहीं होती कोई परेशानी नहीं है, बट इफ यू हैव टू स्टडी, यू नो, स्पेंड द टाइम ऑन द स्टडी, बिकॉज द किड्स, यू नो, दे हैव टू स्टडी सो मच, है ना, सो आई फील सिंपैथी फॉर दैम। तो 16 माला के लिए समय नहीं मिलता तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 1 माला करो, 2 माला करो,
connection with Krishna must be there. कृष्णा के साथ संबंध रहना चाहिए. तो the even chanting one round is very powerful. It's like the connecting the wire with the electricity. तो वायर कैसा भी हो, थोड़ा सा बिजली से इसको छुआ दो तो पूरे वायर में करंट आ जाता है. तो ऐसे ही भगवान के नाम का जप भी है. तो थोड़ा सा जप होएगा तो भी इट्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी करंट रहना चाहिए ना. करंट रहना चाहिए ना. राइट मंगला? क्या रहना चाहिए नहीं? Right? So the connection with Krishna must be there. Any Prabhuji Mati. So I think we should give Viram Deva. Hare Krishna. Thank you Prabhuji Mati. But any Prabhuji Mati's got any comments, you know? There will be one man, he will be, when in his childhood days, his friends would be saying, death is very fearful, and more fearful than death is the Yamaraj. And then he decided to do some large time tapa for Yamaraj. And then when Yamaraj came, he said that nobody would do tapa for you. Why did you do? Then he said, I am very pleased, so ask any boon. Then that man will say that, okay, when my death comes, please notify me. Then he will grant tadastu, and Yamaraj will go. And then that man will think, okay, now whenever the death comes, when he notifies me, I will start doing punya. And then he started to do very bad karmas, like beating people, hunting animals, eating non-veg. So after some time, his white hair started to come. Then he thought, okay, anyway, Yamaraj will be coming and notifying me. Then the white hair used to fall, and then all the hairs also supposed to fall. And then he said, okay, anyway, Yamaraj will come and notify me. Like that he used to again do. And then one day when he was going with his friends, some bhaktas came and said, come devotion with us, don't do bad things. Then he used to say, no, Yamaraj will anytime come, then I'll do bhakti. So he will go, and then he will start doing more bad things, and then Yamaraj will come and kill him and take Yamadutas. And then he will go and scream at Yamaraj, why are you doing like this? You said you will notify me. Why didn't you notify me? And then he used to say that I notified you in 3 ways. First I gave you white hair, then I gave you hair fall, and then I gave you bhaktas, devotees to come and give you preaching. You didn't even take that. That's why. Then he said sorry, and he started to do bhakti there. Very good. Very good, beta. So Prabhu, yeah. तो हाँ बेटा माला को पहने रहो. तो प्रभु this he is doing a very nice सेवा इसके. He is a great preacher, you know. Not he will be. First time. तो पहली बार इसने किया, but the good thing is he was not hesitant. He was not shy, and he went with the flow, you know. Otherwise, speaking in front of so many people, you know, people start cracking, you know. So he did not crack, and doesn't shy, and with full confidence he spoke, you know. So keep doing it, beta. He will do. See, he wants to do it, you know. So whenever your program, you know, Prabhu, give him some slot, you know, for 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Not necessarily for a long class, you know, right? Because maybe he's got studies and all. But every time you can tell one story, you know, and connect with the verse, right? So Prabhu ji, aap bhi, you know, इसको you just. You brought it first time. Yeah. First time he came to. Very good, Prabhu. Hare Krishna. Okay. So I want to beat that one. No. Yeah, it's a good, but you should not have the desire to beat Srila Prabhupada. No, I don't want to beat him. I just want to. You should. I want to serve Prabhupada, you know, and then leave it on Prabhupada. Yes. It's a 1 temple, 2 temples, you know. But anyway, Prabhu, desire is very good, you know. Desire is very good. ठीक है बेटा. Hare Krishna.